Namaskar. Welcome to Ek Samvad at Arunima Ankuran. Today we are in conversation with Dr. Vivek Nanoti about the role of teachers in empowering students. Our guest, Dr. Vivek Nanoti, is Director, Engineering at LTJSS, Priyadarshini Group of Institutions, Nagpur. A very warm welcome to you, sir, and thank you for being here. Thank you. A word about Aruni Mankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Aruni Mankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact. And that's what inspires us to keep going. Our guest today, Dr. Vivek Nanoti, really needs no introduction, but let me share his brief profile here. He's the Director Engineering at LTJSS, Priyadarshini Group of Institutions, Nagpur. With over 3 decades in education, he is an award-winning teacher, researcher, mentor, and an inspiring voice in higher education. He's delivered hundreds of talks, guided PhD scholars, led international projects, and continues to champion innovation, NEP 2020, and lifelong learning. Dr. Nanoti believes that education can change lives, and his journey is a perfect example of that. So we are really grateful to you, sir, for participating in this conversation today. It's a pleasure to have you here. It's yes, my pleasure, my pleasure, my pleasure. Before we go any further, sir, please walk us through the milestones of your journey and why you chose to become a teacher. Yes. I mean, this is something which I would love to talk about. Thank you. At the outset, let me thank Arunima Ankurian and Dr. Pragya Kumari ma'am for inviting me here and knowing more about my journey. And yes, being a teacher has become a passion, right? Because my mom was teacher for 35 years. She was professor of English in government college. My dad was a school teacher for a few years, 7, 8 years before he joined bank. And then passion about teaching was about like I love learning new things. And when came into teaching, I tell you, I did my MSc and then doctorate, immediately got a fellowship of Baba Atomic Research Center. So I continued my postgraduate immediately, and PhD, I finished PhD in 1994. And that was the day. And then I was like, I became a physics teacher, right? In those days, lecturer. So lecturer of physics in an engineering college. And then I thought, like, come on, I mean, I'm teaching only one subject, physics. And then I started surfing students. Those days also, I tell you, you wanted to learn only physics. That's why you have joined this course or college or degree. And they said, no, sir, I wanted to become a painter actually. But actually, I wanted to do something, this, that. And that thing started and, triggered my mind also. Like, at least if I cannot teach my physics students history, geography, or music, but at least I can ask what you are good at. That journey and thinking about student, like what NEP talks today, like student centric, right? It is not what syllabus is all about. It is not what university feels like. It is not about board of studies or academic council of a university feels like. It is what students feel like, right? So that was like student focused thing. And for that also I converted myself into a student mode. So Wonderful. keep learning a lot of things, because my education, if you consider, I completed like almost 31 years back my highest degree, that was doctorate. Hmm. So I cannot, my students cannot relate to that content of 1994, sorry, and I cannot force them कि मेरे जमाने में तो I did I, work in Baba Atomic and Atomic Energy Commission funded me 5 lakh. Sorry, they don't want to listen you. They want something what appeals to them. So that is the point. That is way. Then I took over as like a lot of administrative positions. 13 PhD students got awarded, and then as all the promotions I could finish in next 20 years of my career. Like I started with lecturer, then assistant professor, associate professor, professor, dean, principal of an institution for 9 years, 9 long years in an engineering institution, and now director of that group for last 4 years. So that journey, admin was an attraction. Same time, student development was a focus.
So balancing, and then my choices keep changing, and I love that. It's not कि 20 साल पहले मेरे को यही पसंद था, ऐसा नहीं है. 4 साल से मुझे जो मजा आ रहा है, I do that. That is the point. Wonderful. I think you fit the bill of a transformational teacher. Not only transform Right. students, but also, we have to keep growing along with the students. Yes. Yes. So, Dr. Nanoti, there must be something that's been a constant source of inspiration for you over the years. So, talk to us a little bit about what really inspires you. What is the bigger goal you're looking at, and how do you intend to achieve it? Yeah. See, the main important point when I joined my doctoral degree, and whenever I used to have a difficulty, like after post graduation, my supervisor used to understand, कि यार, he's postgraduate in physics. He have done 10 subjects of physics. He should not have any difficulty. Whereas as a PhD student, I daily had some or other difficulty. So whenever I used to go to him and say, "Sir, ये नहीं समझा, sir, हे नहीं कळलं, नानोटी तुम्ही अभ्यास नाही करत." So that day and then this was a repeated answer. Before he will solve my query, he will say, "You don't study, you need to study. Don't take PhD as a just another degree. No, you need to study. एग्जाम नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती." And then that set of instructions took my mind. And then another important point during my PhD was, whenever I used to ask him कि सर ये वाला तो कहीं मिल नहीं रहा नागपुर में, तो तुमने PhD नागपुर में करने के लिए किया है क्या? This is available in Mumbai. Go to Mumbai. And this particular experiment you want to do, right? So this is in Usmania University. Go to Hyderabad. And this experiment, go to Pune University. And for this literature survey, go to NPL Delhi. And then I realized, yes, it is not Nagpur, it is not me, it is not that institution. It is learning in generally, right? It can be a global perspective, but those were not the day when even globalization has not happened. Globalization नहीं था, Google नहीं था, no search engines, there were not laptops, Yes, no yes. mouse to computers. ये सब था. लेकिन one thing I came to know that meeting people can make you learn a lot. I started traveling. You will not believe, in my 3.5 year span of my PhD work, I have worked, actually physically traveled and worked into 16 world class laboratories in country. 16. Wow. May it be Pune, Mumbai, Delhi, Rajkot, and Hyderabad, and Indian Bureau of Mines, mineral exploration. कहाँ कहाँ नहीं काम किया. And then when I used to go and meet the big scientists over there, Bhabha Atomic Research Center, I went like 6 times there during my span of those 3 years. And I worked, I was first 3 members from university which were allowed to work on first indigenous nuclear reactor, that was Dhruva reactor. So I was in the first 3 university guys who were allowed to work inside that reactor. And then it was an amazing experience. But one thing I learned, कि जितना ट्रैवल करो, जितना घूमो, जितना नई नई यूनिवर्सिटीज जाओ, जितने लोगों से मिलो, दी you know it is like meeting a scientist with 25 years of experience is equivalent to going through maybe 100 research journals, So true. because that So true. man yes, so I mean that ये विजडम हुआ था मेरे को. मतलब ये सोचा था यार, ये सर से मिला, अब फालतू लाइब्रेरी में बैठा था 15 दिन से. 15 days in library are equivalent to talking to 1.5 hour with this senior professor of IIT or an research scientist in Bhabha Atomic Research, because that the experience, knowledge, and crystallized wisdom coming out of that. That was directly available, and that was like showering on me. कि, अरे ये पूछा तो ये आंसर, ये पूछा तो ये आंसर. Everything was so readily available in a friendly way. Then I realized that I must travel. Because जब 3.5 साल of PhD, I traveled 16 places. So then that made me, traveling became my hobby. And I thought, like, whenever I have difficulty, it's not that local problem. It's not about that college. It's not about that subject. If physics, I'm not understanding some issue, I need to understand chemistry. And still I'm not getting convinced about the background of that particular physics scientist perception. I need to learn psychology. So what? I mean, ये जो सब्जेक्ट की बॉर्डर्स निकाल देना, ये आर्ट कॉमर्स साइंस की बॉर्डर्स को डिसॉल्व कर देना, ये
ये एक एक ऑटोमेटिक संस्कार हो गया अंदर कहीं से कि अरे ये सब नहीं रहता, मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स से पूछो। और Hmm. बाद में जब कोलैबोरेशंस आ गए, अब तो आपको मैथ्स का प्रॉब्लम के लिए मैथ्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। Hmm. यू गो टू अ मैथ्स प्रोफेसर, गिव हिम अ ड्यू क्रेडिट एंड टेल हिम भैया ये तू मेरे को कर देना, because he's 30 years into maths. Even if I learn, it would be 6 months of maths. So collaborate with people, travel a lot, meet new people, understand their crystallized wisdom, and take those absorptions to create something new. I mean, that is how creativity and critical thinking can get built. Is what I have learned from my experience. So traveling has become a very, very important hobby in my life, and 200 plus institutions I must have visited in India, including all IITs, IIMs, and all that for delivering lectures. And maybe, I don't know, like last month, I was in Croatia for 10 days for training, getting the training on cyber security. तो मैंने मेरे सब्जेक्ट के वो लेबल निकाल दिए है. Nobody knows I am professor of what thing. No, I am professor of social entrepreneurship. That's it. If that social entrepreneurship and social innovation needs physics, then I'm a physics professor. And if it needs computer science or cyber security, then I am a student of cyber security. I mean, it is that clear in my mind. So that is how it's going on. And then same thing, students unknowingly, I mean, it's a seamless transfer of my attitudes, my learnings, my perception about study among my students. And that is those vibes are true satisfaction for a teacher when my student tells same thing what I am thinking about. Hmm. सर ये ऐसा मिला था, वो वहां मिला था. एवरी बैच आई हैव सम 100 स्टूडेंट्स, वेरी फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ माइन, जिनसे ट्यूनिंग है, दो जिनका वाइब मैच होता है. तो ऐसे 100-150 बच्चे मेरे हर साल मेरे फेवरेट होते हैं. एंड आई अलाउ देम टू एक्सप्लोर, अलाउ देम टू डिसॉल्व बाउंड्रीज, अलाउ देम टू स्किप फाइनल एग्जाम फॉर तबला एग्जाम. कुछ भी करने देता हूँ मैं उनको, उनकी पेरेंट्स की परमिशन लेके करने देता हूँ. Hmm. लेकिन देन आई अंडरस्टैंड दैट फॉलोइंग पैशन, ट्रैवलिंग, मीटिंग न्यू पीपल, वो जो लर्निंग है ना, वो ये एग्जाम और इससे बहुत ऊपर है. सो दैट इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड माय जर्नी अबाउट डूइंग, एंड आई एम डूइंग सेम थिंग फॉर लाइक लास्ट सो मेनी इयर्स. I think that's what real education is all about, going beyond the Yes, yes, boundaries and, wonderful. right. So you've been awarded as the best teacher. So I'm so curious to know what exactly is it that Dr. Vivek Nanuti's class is like, and what are some of the strategies you follow as a teacher? राइट, राइट, राइट. ये तो मेरे को भी नहीं पता था. Hmm. बट व्हेन माय स्टूडेंट्स आफ्टर 20 years come back, Hmm. my alumnus, very successful, their wife, their kids, when they come to me and see, sir, Hmm. आप फिजिक्स पढ़ाते थे ना, वो तो उतना याद नहीं है, पर आपने वो स्टोरी बताई थी सर, Hmm. वो यहाँ लग गई. यू नो ये जब सुना ना, तो देन आई रियलाइज कि जो मैंने मॉरल साइंस, जो मैंने इथिक्स, जो मैंने इनडायरेक्ट इम्बाइबिंग और इनडायरेक्ट सीमलेस इंक्लूजन ऑफ मॉरल्स एंड इथिक्स, Hmm. जो हल्का हल्का 2-3 मिनट क्लास में देता था आउट ऑफ 60 minutes क्लास. लाइक माई क्लास, इफ यू आई लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन योर क्लास, योर क्वेश्चन फर्स्ट. लाइक माई 60 minute इज लाइक माई एंटायर वर्ल्ड. आई ऑलवेज टेल माई टीचर, वो 60 मिनट जो होते हैं ना, या 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है ना, यू आर किंग एंड क्वीन ऑफ दैट क्लासरूम. Hmm. दरवाजा लगाओ यार, फिर कोई बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं, कोई प्रिंसिपल वाइस चांसलर आपको कुछ रोक नहीं सकता. बीइंग अ ग्रेट टीचर, Yes. True. ये फॉलो किया क्या, नहीं वो किया नहीं, जो दिल में आ रहा करो, जो कनेक्ट फील हो रहा है. मेक स्टूडेंट्स फॉल इन लव विद देयर सब्जेक्ट, मेक स्टूडेंट्स फॉल इन लव विद देमसेल्फ, among them, Yes. for Yes. knowing more and more. Hmm. What I feel is like converting the students, making them fall in love with the subject is first thing. For that you need to make it a great interaction. For that you need to create illustrations. For that you need to have different methods, different media, different new processes, new procedures, new pedagogies, whatever. ये सब मिलके अगर सक्सेस हो रहा है तो मजा है. अदरवाइज बीएड कर लेना 2 साल का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो नहीं होता. बीएड करना इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, इम्प्लीमेंट वो केस टू केस होता है. मेरे एक क्लास में मैं कोई एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, दूसरे में दूसरा. बट आई हेट पीपल, टीचर्स टॉकिंग अबाउट मेरी हैंड राइटिंग खराब है. सॉरी बॉस, नहीं चलेगा. Hmm. हैंड राइटिंग टीचर की अच्छी ही होनी चाहिए. Hmm. मेरे को खराब लग रहा तो मैं रिपेयर करूँ उसको. बट माई बोर्ड इज माई थिंग, राइट. मैं बोर्ड पे क्या लिखा वो दिख रहा है उसको 1 घंटे तक.
वो मेरी हैंडराइटिंग खराब है. आई हैव नॉट डिवाइडेड अ बोर्ड. आई टेक very minute and micro things. You know, keep in mind कि बोर्ड गए बराबर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. फर्स्ट हाफ में इट इज अ समरी ऑफ लास्ट क्लास विच स्टूडेंट्स विल टेल मी व्हाट हैपेंड इन लास्ट क्लास. सर यू टोल्ड अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ illustration 1 2 3. So 4 points in my summary of last class, then column 1 column 2 column 3, and my students only uh, write the title of the today's topic, sub topic, असाइनमेंट, ये सब बच्चे लिख डालते. डेट टॉपिक मैं नहीं लिखता हूँ. आई गिव अ डस्टर एंड चॉक टू माई क्लास मॉनिटर. दे डू ऑल दैट, and that is everything is ready, right? And the stage is all set for me. This topic, the columns, the distribution, and last column is summary of the same class of last 10 minutes. And out of those 10 minutes, I've covered up in 5 minutes, and rest 5 minutes I talk on morals and ethics. So those seamless examples, like last year student. Let us not. I never talk about Vivekananda and Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi or Mahatma Gandhi, Savarkar, Ambedkar. No, sorry. I mean, they are not relatable immediately. They are like we wish them. We pray for them. I mean, उनका जयंती होता है, पुण्यतिथि होता है बहुत बड़े. हम तो अब्दुल कलाम से भी रिलेट नहीं हो पाते यार. वो लाइट के नीचे रात को पढ़ते थे. I mean, how a students in my class can relate to that, but they can relate to a person who did something extraordinary last year, to whom he can meet and maintain peace during a fashion show. So that is the one of the virtues, right? Maintaining peace. सो वो वाले एग्जाम्पल बताओ उनको. लास्ट ईयर वो बच्चा आया था यार, उसने देखो झगड़ा होते होते बच गया. लास्ट ईयर वो फैशन शो में गड़बड़ हो रही थी. सी द मॉरल ऑफ दैट गाय. ही हैंडल द सिचुएशन सो पीसफुली. वो उसने ऐसी मदद की थी. उसने लेट नाइट बच्चों को पढ़ा दिया था. थर्ड ईयर के बच्चे ने फर्स्ट ईयर को पढ़ा के पास करा दिया. तो दी सत्य अहिंसा, ये सब बोल के इनकी डेफिनेशन बताने से अच्छा इसका जो एप्लीकेशन जस्ट 2 बैच पहले हुआ है, 3 बैच पहले हुआ है, मेरे कोई पर्सनल लाइफ में हुआ है, वो वाला एग्जाम्पल कोट करता हूं मैं 3-4 मिनट, एंड देन दैट एंड्स द क्लास. एंड दैट टू इट्स प्री प्लान्ड. दो आई से इट्स एन सीमलेस हो रहा है, अपने आप हो रहा है, लेकिन अपने आप हो नहीं सकता क्योंकि हम वो सब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में रहते. तो सब्जेक्ट क्लास इटसेल्फ गेट एक्सटेंडेड. तो ये मॉरल के लिए तो टाइम ही नहीं रहने वाला. सो आई कीप वॉच ऑन माई वॉच एंड आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि नहीं 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में अब खत्म है स्टोरी. अब मेरे को मॉरल एथिक्स की ये वाली स्टोरी बताना है. आज आई विल इम्बाइब विच वैल्यू? लव और control on anger or helping others or sympathy, empathy, some virtue, moral virtue. I plan it earlier, उसकी related story plan कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस प्लान करता हूँ और वो पक्का बताता हूँ. क्योंकि वो नहीं बताया ना तो अपने आप आने नहीं वाला, आप भूल जाओगे, समय नहीं मिलता. बिकॉज वी आर अ सब्जेक्ट टीचर. आई एम अ फिजिक्स टीचर, समबडी इज मैकेनिकल इंजीनियर, समबडी इज हिस्ट्री. वो होने नहीं वाला है. और मॉरल साइंस की किताबें और मॉरल साइंस का सब्जेक्ट रख लेना, कुछ नहीं होने वाला है. सालों से यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस कंपलसरी है. कोई कंसर्न नहीं होता है एनवायरमेंटल के बारे में क्योंकि वो सब्जेक्ट है. उसके क्वेश्चन आने वाले और क्वेश्चन को रिप्लाई रट्टा मारना है. फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेशन वो नहीं चलता. सो इट हैज टू यू हैव टू लीव दैट through your teaching, through your preaching, through your mentoring, through your guiding, through understanding students need and giving a customized formula for individual student. Like NEP का मेरे को एक सेंटेंस बहुत पसंद है, कॉपी पेस्ट है बिल्कुल मेरे दिमाग में, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बेसिक 66 पेज का जो डॉक्यूमेंट आया था उसमें लिखा कि इट इज अबाउट fostering, nurturing the unique capability of each student. Fostering, nurturing, identifying the unique capabilities of each student by what? By sensitizing teachers and parents to make them a 360-degree development. वगैरह वो स्टोरी आगे की है भाई, पर every single child is different. तो पहले बेंच के सब बच्चे गधे हैं या आखिरी बेंच के बच्चे बदमाश है? सॉरी, वो बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, तीनों का स्कूलिंग अलग है, तीनों का पेरेंटिंग अलग है, तीनों का कल्चर अलग है, तीनों के संस्कार अलग है. वो 3 एक सरीके हो ही नहीं सकते. वो सब 3rd स्टैंडर्ड के है, वो सब A सेक्शन के है, वो सब फर्स्ट बेंचर है, वो लास्ट बेंचर है, 3rd बेंचर है. सॉरी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एवरी सिंगल इंडिविजुअल चाइल्ड इज अ यूनिक एंटिटी. He has his own preferences, his own choices, his own passion, his own love about this, his own preferences, his own hobbies.
पैशन यार, उसका चीज अलग है, वो उसके पेरेंट्स अलग थे, उसकी Absolutely स्कूलिंग true. अलग थी, उसको कॉलेज स्कूल हर चीज अलग है ना। उसको तुम सबको हिस्ट्री के क्लास में बैठ गया मतलब सब हिस्ट्री के स्टूडेंट हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो आइडेंटिफाइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think what you're saying is so much in sync with what we believe at Arun Mankuran, that each person is unique and special, and we need to understand that. एग्जैक्टली। Uh, Also, the fact that you have this thought process and this mindset as a teacher, where did the seed come from? Who is the inspiration, or what? Who are the people who inspired you to become this Vivek Nanoti? Mm, there are many people. There are many good people. Like first, my mom. She's an amazing, most popular professor of English in Institute of Science. 35 years she served as a professor. And she was so popular. उसके क्लास में अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं रहती, बच्चे भरे हुए रहते थे, किसका क्लास नहीं रहा वो भी उनके क्लास में आके बैठता था. So she was one of my first inspiration. Then many like my PhD guide, Professor Dr. D.K. Kulkarni, who always told me कि यार you need to meet person, go travel. इतने काम होत नानोटी नागपूर बस असेल पीएचडी नाही होणार. गो ट्रॅव्हल, गो टू मुंबई, गो टू दिल्ली, गो टू यूएस एंड गो टू वॉर्सॉ, क्रैको, जाओ कहीं भी जाओ, यहाँ नहीं होने वाला है. गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, स्पेंड टाइम, बेग देम, टेक फेवर, रिक्वेस्ट देम, गेट योर वर्क डन. इन टर्न हेल्प देम आफ्टरवर्ड समटाइम वॉट एवर वे यू कैन. तो ये वाला सीख दिया डॉक्टर डीके कुलकर्णी सर ने. देन मेरे पहले प्रिंसिपल प्रोफेसर उदय गडकरी, amazing professor of architecture, outstanding. I mean, he's such a close friend now, but earlier my mentor and guru. And then Professor Modak, with whom I have shared cabin for last like उनके साथ तो 8 साल टिफिन खाया है. So he was like Nanuti. He filled in my form. I told you, मेरा पीएचडी होने के बाद ना मैं 5-6 साल आई कुडंट गाइड एनी डॉक्टरल, एंड मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं मेरे अपने कोई पैशन थे. तो ही सेड नानुटी, यू हैव डन सच ए वंडरफुल पीएचडी, यू मस्ट गाइड स्टूडेंट्स, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैरी ऑन योर रिसर्च विथ योर पीएचडी स्टूडेंट. एंड आई वाज लाइक, आई एम नॉट अ ऑफिशियल सुपरवाइजर फॉर पीएचडी. He got my form filled, How came to nice. my cabin. Wonderful. Professor Modak is now 82, 83 each. I am going to meet him tonight. वो मेरे पास फॉर्म लेके नानोटी फक्त साइन करता का, बट स्टूडेंट भी पीएचडी में तुमको भेजूंगा और ये तुम्हारा सुपरवाइजर भी मैं करवा लेता हूँ. बट आई वांट दैट यू शुड गाइड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्रिएट अ कम्युनिटी of your passion, of your topic. Like I was working on nanomagnetic materials. They were useful for storage, they were useful for illumination. So wonderful topic it was. But somehow administration was an attraction. तो उस चक्कर में छूट गया था. But Professor Modak brought me on a track, and then I could guide 13 PhD students. Professor Pandit was one of the inspiration, who was ex-director of VNIT, and few more. Like my first head of the department, Dr. Megha Joshi. She was an outstanding teacher. Like उनको बोलो मैडम ये पढ़ा के बताओ. कहो, हम दो बैठे और मैडम बैठी है स्टाफ रूम में, शी विल टीच 2 hours. सो दैट इज मेगा जोशी. सो ये सब लोगों के संस्कार होते गए. एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई मेट माई इन माई लाइफ सब अच्छे लोग मिले. सो दैट इज द पॉइंट. Wow. तो अच्छा लगा, मतलब इतने सारे लोग मिले ना कि वो अपने आप ही अच्छा टीचर बनने के लिए एक इंग्रेडिएंट बनते गया. And then students also taught me a lot. I have some few of my amazing students. और आज भी मैं बच्चों से बहुत सीखता हूँ. अभी उल्टा हो गया, पिछले 5-7 साल 8 साल से क्या हो गया है, स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट. चैट जीपीटी, द डे चैट जीपीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, नवंबर 16-17 में कहीं न्यूज पढ़ा कुछ चैट जीपीटी नाम की. वी वर नॉट इवन नोइंग एआई एंड जनरेटिव एआई एंड कॉग्निटिव, ये हमको कुछ नहीं मालूम था तब. वो नवंबर में just I read a reel kahin to be, and then I called few students. I knew these computer science students must be knowing this. मैंने उनको बुलाया. तो सब बोले सर क्या हो गया? मतलब व्हाट इज चैट जीपीटी? ही शुड बोले कल ही तो रात को लॉन्च हुआ है सर, हम वो पढ़ ही रहे थे. मतलब दैट सी आई न्यू दैट यू आर मस्ट बी गॉन थ्रू, प्लीज टीच मी. We had 3 hour session. 3 students taught me for 3 hours, and I was the first person maybe in my college to take a hands-on on chat GPT. तो बच्चे वहां से पढ़ाते हैं. The students are very good in teaching these days. They are very sorted. They know what is good and bad. Only thing is that उनका और चॉइस हमारा टीचर का चॉइस मैच नहीं हुआ तो हम उनको खराब बोलते हैं. बट दे आर वेरी स्पेशल, दे आर यूनिक, दे आर वेरी डायनामिक, दे आर मल्टीटास्कर्स. या हमको लगता है कि वो मोबाइल देख रहा है, लेकिन मोबाइल देखते देखते होमवर्क भी कर रहा है, चैट भी कर रहा है, मम्मी को भी रिप्लाई कर रहा है, एक पिज्जा अंदर भी जा रहा है, और आंखों के सामने अलग से व्हाट्सएप भी खुला हुआ है. सो वो दे आर मल्टीटास्किंग. आई मीन वी शुड अप्रिशिएट दैट. वो ऐसा मोबाइल मत देखो, आई नेवर डू दैट.
आई एम अ सुपर सोशल मीडिया पर्सन तो मैं बच्चों को क्या बोलूंगा कि मोबाइल से दूर रहो. So it's not done. They are multitasking. Only thing is that you need to channelize them, appreciate them for their choices, and then I have so many examples I tell you जिनके parents ने उनको मना कर दिया था. एक बच्चा मैकेनिकल में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया एंड दे एचओडी केम टू मी एंड सेड सर दिस इज अ यूजलेस गाय एंड इसको सर टर्मिनेट करना ही पूरा था. ये डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहा है, कॉलेज का भी नाम खराब कर रहा है एंड आई डोंट वांट हिम. तो सर ठीक है फाइन. बोले दूसरी बार 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया. आई कॉल्ड हिम नेक्स्ट डे. आई सेड ठीक है आज रोना धोना नहीं, टुमारो फ्रेश माइंड से मेरे पास आओ. ही केम टू मी एंड ही सेड सर आई एम अ तबला विशारद. मैं तबले कैसे हाथ चलते मेरे, और मेरे को सर तबला ऊपर रख दिया फेल हो गया तो मैं दिमाग खराब हो गया, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा. सी पर इतना भी nobody has asked, nobody has cared about. I said I'll talk to your parents, take out your tabla. You know he took out, मतलब कितने तबले सर, मेरे पास 4 तबला है, काड़ी 1 काड़ी 2 काड़ी 5 सब बताया. आई वॉज इम्प्रेस्ड यार तू तो विशारद तबले का बजा के दिखा. कॉलेज में बजाया. ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग तबला प्लेयर एंड यू कैन टीच ऑल्सो. मतलब तू कल से ट्यूशन क्लास चालू कर दे तबले की, छोड़िए मैकेनिकल वगैरह अपन बाद में अगले साल देखेंगे. एंड यू विल नॉट बिलीव आई टॉक टू हिज पेरेंट्स, हिज मदर, आई नीड इट कन्विंस देम कि यार इनको मत तबले से तोड़ो इसको. उसको तबला निकाला. ही स्टार्टेड इवनिंग कोचिंग क्लास ऑफ तबला. ही गॉट 35 स्टूडेंट्स, चार्ज 1000 रुपीज. 35,000 महीना कमाने लग गया. सारे मैकेनिकल के पेपर भी निकल गए और अच्छी जॉब में भी लग गया. सो तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास. मतलब ऐसा मैंने बहुत आउट ऑफ द वे जाके किया. एक पियानिस्ट था, उसके भी घर में बहुत तकलीफ थी. उसको भी घर में बोला कि नहीं ये पियानिस्ट आउटस्टैंडिंग है, इसको करने दो. और पैंडेमिक में यू विल नॉट बिलीव, इज विशाल बागुल, यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब. और ये उसको 1.5 लाख फॉलोअर्स मिल गए यूट्यूब पे. उसके ही स्टार्टेड पियानो ट्यूटोरियल्स थ्रू विच अर्नड अ वेरी हैंडसम मंथली अर्निंग्स. क्योंकि उनके पास पीएचडी उसके जो पियानो स्टूडेंट्स थे ना, दे वे फ्रॉम 80-year old couple from Canada and 60 years old couple from London. International students he had. And only Saturday ka face to face like we are doing this, and rest recorded. See, amazing. He was earning lakhs of rupees, did so many concerts, created his own band, and now he is into his own main profession of telecommunication. So I don't take it as an option. I just see it is an add-on to their lifestyle. Hobby can not be a full-time thing immediately. Hobby can be a Yes. booster to what you want to learn, what you want to pursue: physics, maths, electrical, medical. Hobby is a booster to that. Mind opens. So that is, Yes. at least it will help to that extent. वो नहीं हुआ तो थोड़ा पार्ट टाइम प्रोफेशन भी बन सकता है. थोड़ा अर्निंग शुरू हो जाएगा तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि शाम को 2-4 घंटे कहीं पियानो बजा के आ गया, 5,000 रुपये मिल जाते, पॉकेट मनी मिल गया. So that is also a booster. And slowly in a life, after say 10-15 years, if you feel like कि now my part time has grown sufficiently to make my bread and butter, तो छोड़ो ये मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, बन जाओ पूरा पियानिस्ट फुल लाइफ टाइम. सो दैट इज ऑप्शन इज ओपन. एंड दैट हैप्पीनेस कंपोनेंट यू सी ऑन देयर फेसेस एंड इनटू देयर एंटायर लाइफ, तो वो मजा अलग है. सो दैट इज द पॉइंट. एंड आई डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन बिंदास्त. आई मीन वो कोई मैं डरता नहीं हूँ. all those who discarded students are my child by because of bad academics वाले मेरे बच्चे हैं सब वो कॉलेज में. सर मुझे लग रहा है ये तो हमको एक सीरीज करना पड़ेगा, जस्ट सर a lot of young people today need mentors, they need a sense of direction. So what are some of the things that you would like to say to the youngsters who are listening in and inspire them, motivate them? फाइन सी आई ऑलवेज से लाइक जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रही है ना, तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड विथ AI in market, like you just a click away, the world class information is available. And let us not blame AI. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक AI इज अवेलेबल यार, इट्स अ सपोर्ट थिंग, राइट. जो जैसे पहले हमको बुक्स में मजा आता था, फिर हमको गूगल में मजा आने लग गया, फिर हमारा स्पेसिफिक रिसर्च जर्नल की लिंक्स आने लग गई. सो वैसा भी AI आ गया. सो AI इज गुड, बट द पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर पैशन. आर यू एंजॉइंग इट? इफ नॉट, it's absolutely fine. You can switch over. I always tell, even career wise, when I guide students for career, no, so fine, you are forced to take mechanical because you couldn't get computer science. Because through merit, obviously, somebody can always get 10 marks less. That is not his fault. 10 मार्क कम आ गए मतलब उसने जिंदगी और मैकेनिकल करना है.
ऑब्वियस है, कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, मेरिट में नहीं मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन यू कैनॉट चेंज. At second year level, you can change. Now, autonomy is there. NEP is already implemented. Students should understand. Like I tell my mechanical students, civil students, for example, civil करना था, mechanical मिल गया. Computer science करना था, civil मिल गया. Please understand your passion, and there is always degrees, knowledge, skills, and competencies are above degrees. Please understand this. I have hundreds of such examples wherein they are dropouts, they are failures. वो बड़े बड़े नहीं, बिल गेट्स एंड इलॉन मस्क के एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, मेरे कॉलेज के, आपके घर के बाजू के ऐसे कई एग्जांपल्स हैं. दोज हु आर dropouts, अर्निंग अ लाख ऑफ रुपीज मिनिमम, अपने पैशन के हिसाब से काम कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर कितना अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर से प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम द सॉफ्टवेयर लर्निंग्स, राइट. एवरी फील्ड इन दिस वर्ल्ड विल नीड सॉफ्टवेयर नॉलेज. मेरे को लैपटॉप पसंद नहीं, इट्स नॉट डन. If your eyes are getting hurt, please use some drops and good Blu-ray cut specs and take some counter exercise, whatever. But you cannot say I cannot work with, I don't like laptop all the way in front of my eyes. I am 10 hours at least in a day in front of my laptop. Rest of the time it's mobile. So I mean, just don't take excuses that you are not good at software, so you have taken mechanical, so electrical. No, IT is the main thing. Second, so I always, back of mind, everybody should understand, youth should understand that यही था क्या मेरे को जो करना था, क्या मेरे को यही पसंद है, क्या यही वो सब्जेक्ट है जो मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ, क्या वही ये सब्जेक्ट है जिसमें मैं आज नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, पोस्ट डॉक जिंदगी भर पढ़ सकता हूँ क्या. आज लग रहा है तो उसको परस्यू कर लो, हो सकता है 4 साल बाद बदल जाए, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो भी सही है ना. अब मैंने फिजिक्स पढ़ा है 30 साल. उसके बाद मैंने 2016-17 में सोच लिया कि नहीं यार, ये फिजिक्स पढ़ाने वाले तो मेरे पास 18 लोग और हैं. आई शुड teach and learn something. I should teach something which is very useful to student. Like social innovation in this country is very poor. India needs social innovations, right? Anything what is getting innovated, कोई रिसर्च कर रहा हूं मैं, कोई इनोवेशन कर रहा हूं यार, वो कोई समाज के एक घटक को तो काम करे. इट शुड गेट बेनिफिटेड टू सम सोशल, ऑटोमेटिकली. पैसा कमाना है बहुत, I am not against earning money. You should earn a lot, have a wonderful lifestyle and give bestest lifestyle to your parents also, who could not do that. तो वो सब करो यार, लेकिन क्या होता है कि the very business social canvas of that business hub model में ही social concern एक दो ऐड हो जाते हैं जिसमें अपने आप वेस्ट यूज हो रहा है, तो आपका सोशल कंसर्न सॉल्व हो गया है. जिसमें कुछ लेडीज प्रेफर्ड जॉब्स को आप प्रमोट कर रहे, हैंडीकैप लोगों को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे, कहीं ना कहीं सोसाइटी के एक सेक्टर को वो अपने आप एड्रेस करता रहे. सो दैट इज सोशल इनोवेशन. सो आई वाज लविंग दिस थिंग. आई नेवर लर्न दिस. मैंने 16, 17, 18, 3 साल आई एक्चुअली ट्रेवल टू सो मेनी वंडरफुल यूनिवर्सिटीज लाइक बर्लिन and Berlin, Portugal, Scotland. I stayed University of Edinburgh, world's top 10 में आ रही है. वहाँ मैंने ये business canvas सीखा. I never did MBA, but I learned all these things, short courses of 10 days, 12 days. 30 foreign universities I have traveled till date. I mean, around 30. Amazing. And for learning and then for training also. तो अराउंड लाइक यूरोप में ही करीबन 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी होगी. देन इजराइल 5 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आई हैव बीन टाइड अप. वहां जाके सीखा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सोशल इनोवेशन क्या होता है. वो पढ़ाया. उसके बाद आई गॉट अट्रैक्टेड टू ग्रीन इकोनॉमी. सो आई कैन नॉट टेल कि तेरे को नहीं समझता था क्या, तेरे को कुकिंग ही करना था तो मैकेनिकल क्यों लिया, मेरे क्यों 12 लाख खराब किए. प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल दैट. तब वो अच्छा लगता था तो वो किया, अब ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लेंगे यार. इट्स आई मीन नॉट अ बिग डील. रिमेनिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल, ये बहुत जरूरी है ना. तो वो सक्सेस स्टोरी तभी क्रिएट होगी जब मेरे को मजा आ रहा है, जब मेरे को आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग. I'm like I may be earning bit less than others, but मेरे को मजा आ रहा है. तो ये वाले कॉन्सेप्ट में जाके जब हम लोग सोचना चालू कर दें, so that becomes the buzzword. फिर बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. मैंने 18, 19, 20 में मैंने ग्रीन इकोनॉमी सीखना शुरू कर दिया. I stayed in Warsaw यूनिवर्सिटी, पोलैंड, लाइफ साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर लिया. उसके बाद इसराइल में 5 साल, किर्गिस्तान इन्वायरमेंट के लिए. किर्गिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो किर्गिस्तान आई हैड बीन मेनी टाइम्स, लाइक stayed there with their biotechnology department, environmental science department.
And then Nepal, yes, Nepal also has got 2-3 wonderful universities. Indonesia, I've been traveling. I was in Spain last 2 months back. मैं जाते रहता हूँ. I have started learning. लर्निंग करो, समझो, अप्लाई करो, अपने इंडिया आके पढ़ाओ. सो वो वाला एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर मी माई सेल्फ. मेरा छोटा फॉर्मूला है कि यार नया कुछ पढ़ो, 8 दिन पढ़ो, नोट्स बनाओ, पावर पॉइंट्स बनाओ, और वो 1.5 महीने का कोर्स बना के यहाँ पढ़ाओ. बिकॉज यू कैन ऐड योर ओन थिंग विच विल मैच टू देयर लोकल थिंग. Like what I learned in what architecture department in Technische University Berlin, और क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स किया 9 दिन का, पर वो यहाँ एकदम रिलेट नहीं होता मेरे बच्चों को. तो वो 8 दिन मैंने सीख लिया है. अब उस पर डिपेंडेंट मैं मेरा कोर्स क्रिएट करता हूँ और अपने बच्चों को देता हूँ. तो वो एक स्टडी भी हो जाता है और अपना मन अच्छा रहता है. यू लाइक आफ्टर टीचिंग 35 years into admin, research, academics, पर रोज नया सीखने मिल रहा, तो यू फील सो यंग अबाउट ऑल दैट. ऑल द टाइम यू फील अरे आई एम अ स्टूडेंट मोड. तो वो मजा आ रहा है बहुत. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब जो अच्छा लग रहा है करते रहो, कोई इशू नहीं. एंड यूर स्किल्स कॉम्पिटेंसी ये डिग्री से हमेशा ऊपर रहेगा. अभी अभी वो दिन आ गए हैं, द बेस्ट जायंट्स लाइक गूगल एंड IBM एंड आलमो, ये सब लोग डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को दे रहे हैं. तो लेट अस एनकैश दैट. दिस इज द टाइम, दिस इज अ वंडरफुल टाइम दे आर इनटू. वी फील जेलस अबाउट द करंट स्टूडेंट कि यार मैं ये जमाने में क्यों नहीं ग्रेजुएट कर रहा हूँ. सो इट्स सो बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रो, बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू enjoy liberty and exercise their choices. Best time है अभी. Education is in that phase for globalization, for internationalization, for true choice based, true word बहुत important है. For true choice based education for the student, this is the best time. So teachers should be more mentors, guides and supervisors than being a typical classroom and lab teachers, because वो वाला वैसे IIT के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स बहुत बढ़िया अवेलेबल है. उतना अच्छा तो मैं भी नहीं पढ़ा पाता हूँ, वीडियो से अच्छा मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बट द ह्यूमन टच, द काइंड ऑफ मोटिवेशन, द इंस्पिरेशन, द अंडरस्टैंडिंग, all these virtues like work like anything, and that is why we are there. Otherwise we would be, you know so that is the point. Such precious learning is happening here, sir. One of the most, concerning issues that we have to deal with is that of brain drain. And what I'm so Yeah. fascinated by is your approach to the idea that you go there, you learn, and then come back and invest. Please talk to us a little bit about, the issue of brain drain. Yes, I don't blame parents or teachers. एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. NEP जब लग गया था ना, तो 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एवरीबडी वाज कंसर्न कि और इतना सारा NEP में डाल दिया है, बजट बढ़ाओ. एंड यू विल नॉट बिलीव, the total budget was exceeded by central government, which was like 1.2 lakh crores of rupees. 1.2 lakh crores 2022-23 का बजट था फॉर हायर एजुकेशन, राइट? एंड the same year, only parents who sent their kids to America, only one country, America, parents paid 1.5 lakh crores on their fees, which was paid to America. ये ब्रेन ड्रेन का कमाल है. 1.25 करोड़ पूरे इंडिया का एजुकेशन का बजट है, और 1.25 से करोड़ से ज्यादा तो फीस इंडियन पेरेंट्स ने सिर्फ US में भेजी है. UK एंड नेपाल एंड सिंगापुर एंड मलेशिया सब अलग. सो वी आर, इंडिया इज अ पुअर कंट्री विथ वेरी रिच पीपल. मतलब पूरे इंडिया का एजुकेशन तो 2000 पेरेंट्स ही संभाल रहे अकेले. आप क्या बात कर रहे हैं, किसी को टैक्सेस से क्या एजुकेशन दोगे? तो वो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम है. बट देन आई हैव कंपेयर्ड, लाइक इन अ सेंस, ऑन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. व्हेन आई चेक्ड, आई एम ऑन वेरियस सिलेबस फ्रेमिंग कमिटी, ट्रेनिंग फ्रेमिंग कमिटीज ऑन वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज. तो जब मैं देखा ना, तो एक सिंपल, एक वन वर्ड में एग्जाम्पल बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन माई यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड देयर यूनिवर्सिटीज. मेरे को जब सिलेबस फ्रेम करता हूँ, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, सो व्हाट आई डू इज I have 40 lectures given by my head of the department, board of studies. You have to finish your subject in 40 theory lectures of 1 hour each. So 40 hours teaching, and I get a practical, 10 practicals of 2 hours. So 20 that. So 20 and 40. So 60 hours is a subject for me, right? Out of which 40 hours classroom teaching, 20 hours lab. लैब में भी प्रैक्टिकल, जर्नल लिखना, इशू करना, सर्कस, सब मिलके वो आधा टाइम उसी में गया.
Whereas when I go to design and devise and create syllabus in those European universities, what instruction we get is you have to design a syllabus of 120 hours. So double हो गया. वहां वो 60 घंटे में हम लोग इंडिया में पढ़ा रहे, वो बोलते एक एक सब्जेक्ट में 120 घंटा, एंड यू मे हैव 15 to 20 थियरी क्लासेस इफ नीडेड. Wow. 15 to 20 थ्योरी क्लासेस इफ नीडेड. मतलब 105 घंटा आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंडस्ट्री लर्निंग, बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, फ्लिप क्लासरूम, आपको यही सब में 105 घंटा देना है. और सिर्फ 15 घंटे कुछ एक बेसिक होगा कुछ पढ़ाने का, फंडामेंटल्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू कैन डू दैट. This is the difference. You don't need, once you undergo this 120 hours of treatment of that particular subject, it can be thermodynamics, it can be ancient history, and it can be global warming. That is not an issue. You have lived that 100 hours through experiential learning. So 15 hours theory class in a semester of 6 months and 105 hours ओनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस. जब वो 100 घंटा अगर वो बच्चा एक्चुअल एक्सपीरियंस कर रहा है सब्जेक्ट लर्निंग, और यहाँ पे हम 40 घंटा थियरी, 20 घंटा प्रैक्टिकल, 60 आवर्स में सब्जेक्ट खत्म. ये ब्रेन ड्रेन का बेसिक अट्रैक्शन ऑब्वियस है. एंड एजुकेशन इज डिफरेंट. थर्ड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट गेट्स एन इंटर्नशिप, वेरी वेल पेड, एंड इमीडिएटली गेट ट्रांसफर्ड इनटू अ गुड जॉब. सो फाइन. They don't even pursue PG or PhD in Europe. They are local people. They don't need it. They have a dream to become an engineer in Mercedes, and right in second year he gets an internship, and then third year he gets a job. Final year he is like degree holder plus 1 year experience into a Mercedes thing, and he will retire from Mercedes itself. So they teach technology also. In India we cannot afford that, because not every student will get absorbed by Mercedes or Infosys or Tech Mahindra. नहीं, यहाँ नहीं होता, यहाँ competition है. So वो जो डिफरेंस है वो भी ब्रेन ड्रेन के लिए बहुत कारणीभूत है. लेकिन नाउ विथ एनईपी, नाउ विथ ट्रू चॉइस बेस, नाउ विथ ग्लोबल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, we as a teacher, we as a senior professors, we must tell students that no, this is this in London University and this is in Nagpur University, in Mumbai University, or any private university for that matter. This is a difference. But you can, and then plus and minus of both the sides and all that. टीचर को ही नहीं पता है ना. The irony is like, टीचर नीड्स टू. अब इंडस्ट्री वाले आके हमको बोलते हैं आप इंडस्ट्री रेडी सिलेबस नहीं पढ़ाते. अरे वो टीचर जिंदगी में इंडस्ट्री नहीं गया कभी. वो क्या इंडस्ट्री रेडी बनाएगा बच्चों को? वो उसने इंडस्ट्री नहीं देखी कभी. वो एमटेक हुआ, बीटेक हुआ, टीचर लग गया. जिंदगी कॉलेज में ही गई, पहले स्टूडेंट करके बाद में टीचर करके. तो वेयर फ्रॉम ही विल गेट दोस, सो दैट इज द डिफरेंस. सो वी नीड टू सी टू इट दैट कि वो बच्चों को जितना 60 घंटे है ना, ठीक है चलो जान दो, बट आउट ऑफ 60, 45 आवर्स शुड बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग. Send them to mines, send them to Airport Authority of India, send them to biotechnology laboratories, send whatever. And the moment a successful teacher or educator who is into fourth revolution of education is one who can convert into that classroom a typically teacher and syllabus dependent student into a self learner. That is the next stage. Wonderful. If a teacher can convert a typical, अरे टीचर डिपेंडेंट कब तक रहूंगा मैं? मेरे को एमएससी में भी पढ़ाते रहो आप, क्लास नहीं लिया तो मैं फेल हो गया. No, it is self exploration. It is a self love. It is the madness. It is that craziness about subject. It is the hunger of that knowledge. It is about not about syllabus. टीचर में से यार ये मत पूछ इतना, मेरे को ये syllabus में नहीं है. So what? I want to learn. I want to know that if a teacher can create that self-learner mode, if we can shift all those teacher-dependent, syllabus-dependent, classroom-dependent, lab-dependent, college-dependent students into a self-learner, a hungry for knowledge student, मेरा काम हो गया. फिर मैंने 60% भी सिलेबस कंप्लीट किया नहीं किया कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बन चुका है. He is not now dependent on you, and that is the stage. At least for college student, this works like anything, and that is the stage where he feels freedom. He is not restricted. He can enjoy 8 days, one subject only. Eventually, he will come across all the subjects. You are there to mentor and guide, but a self-learner, and self-learner, मतलब उसको जो पसंद है वो कर रहा है.
फिर जो पसंद होता है वो लाइफ लॉन्ग में कन्वर्ट होता है. सो टीचर डिपेंडेंट टू सेल्फ लर्नर, एंड सेल्फ लर्नर ऑटोमेटिकली पैशनेटली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइफ लॉन्ग लर्नर. This is the fundamental duty, responsibility of a teacher of fourth revolution of education, which talks about education must create innovators. इनोवेटर तभी बनता है जो खुद सोचता है. मैंने 100 पढ़ाया और आपको आई टॉट यू 10 चैप्टर्स. You learned, you are a good student, so you learn 10 chapters. I assess you on those 10 chapters. I will ask same example, same questions. And obviously you have learned that, so you will reply 100 on 100. And you are 10-pointer student. Sorry, you have done nothing to the education. यही थर्मोडायनेमिक्स लॉ मेरे को 1975 में मेरे टीचर ने पढ़ाया था. आज 225 में वही थर्मोडायनेमिक्स लॉ की डेफिनेशन न्यूमेरिकल और एक्सपांशन मैं कर रहा हूँ. 45 साल में एजुकेशन की तो ग्रोथ ही नहीं हुई. So that philosophy teacher has to live. I keep this my passion, and I must have trained more than 10,000 teachers exclusively on pedagogical trainings, pan India, pan world, and around 40,000 teachers on research methodology, because every teacher has to be a researcher and innovator. Then that reflects that extrapolation of the subject, the application of the subject, the importance of the subject. If you are not a researcher, if you are not an innovator, you will never, can convince your students to that this is so wonderful. This is easy, this is wonderful, this is useful, this is life. So ये बताने का जो तरीका होता है ना, इसके लिए टीचर इनोवेटर होना चाहिए. So that is the point. So teacher training has become my passion. 20 साल में like 40,000 को तो ये दे दिया. Around मैं 50,000 teachers I have trained online for more than 100 plus universities in country. So this is a passion, and let us work and let us hope that yes, things will change. Brain drain will be reduced. Indian teachers will realize that it is experiential learning which matters. It is his and her choice matters. Eventually it will come. The days are good. NEP has popped up and cropped up and triggered few of the aspects of international education patterns. So let us hope that we are doing our work. मेरे को तो लगता है मैं मेरा काम कर रहा हूँ. जितना मेरे को पढ़ा सकता हूँ बच्चों को पढ़ाता हूँ. रिमेनिंग टाइम में आई ट्रेन टीचर्स. सो वो बदलाव लाना है. इट्स अ चेंज, बिग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन है. इट्स नॉट इजी, बट लेट अस लुक फॉरवर्ड फॉर that upgraded, enlightened education which our students are deprived of today. They should get that. That is the point. This thought is coming to my mind, sir. A truly great teacher is one who makes himself increasingly unnecessary. Yes. True. So exactly right. I think we can just go on and on, but before we conclude this conversation with you, please do share a few tips for teachers and a few tips for students. So we have been talking that only indirectly. मैं उसी पे बात कर रहा हूँ. लेकिन for teachers, I will always think that please do not underestimate your students. Please do not give a blanket teaching treatment to all. Please. That hurts a lot. A blanket treatment to everyone. No. Because I am a physics teacher, what can I do? I'll teach only physics. No. Just take a simple steps. What I do, I have 1,500 admissions I get. What I do, identifying, nurturing, and fostering the unique capability of each student. How to get that? Ask them, right? Simple, ask them. yes. How to ask? Send a Google Sheet. I send a Google Sheet to all 1,500 students who get admitted. And I ask them 4 questions. What is your favorite subject? What is your favorite hobby? What is your passion? And what is your favorite career? These 4 things matter. His education, favorite education subject can be history. Favorite career can be mechanical engineering. Or hobby can be tabla. Or favorite subject can be mechanical. And favorite dream career can be army. और नेवी और IAS ऑफिसर. यार कुछ भी हो सकता है. तो ये 4 चीजें को कनेक्ट मत कर डालो. ये अलग अलग है. उसकी हॉबी, उसका पैशन, उसका फेवरेट सब्जेक्ट और उसका ड्रीम करियर. ये 4 चीजें लिखने तो दे दो बच्चों को. आई थिंक हाई स्कूल ऑनवर्ड्स ऑल्सो वी शुड डू दैट. बच्चे बहुत स्मार्ट है. तो टीचर शुड नो दैट द मोमेंट यू गेट अ डेटा, स्टूडेंट फील सो हैप्पी. मेरी हॉबी पूछा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, मैं मैकेनिकल में एडमिशन लिया लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा IoT है. पूछने से भी आधा तसल्ली हो जाता है. तो वो तसल्ली दिलाओ बच्चों को डे 1 को. फिर बहुत आसान है. एक्सेल शीट में डेटा आ जाता है.
अब इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर हूँ तो वो तो सिंपल है, एक्सेल शीट में डेटा आ जाता है, segregate those data, all IAS ऑफिसर्स, इंस्पायरर्स, ड्रीम करियर वाले एक ग्रुप में डाल दो, क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप्स, peer learning automatically starts. You don't have to teach him army because you are a mechanical professor. You don't have to mentor him for IAS coaching. No, sorry, you are not meant for that. वो कर लेता है यार, उनको सिमिलर माइंडसेट वालों को एक साथ ग्रुप में डाल दो, सब मेरे आर्म फोर्सेस वाले एक ग्रुप में, म्यूजिशियंस एक ग्रुप में, इंस्टाग्राम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स एक ग्रुप में, वो आपस में पढ़ लेते हैं. व्हाट इज पीयर लर्निंग? पीयर लर्निंग कैन हैपन ओनली इफ दे आर ऑन द सेम पेज of a same passion. So this is so simple. Sending a WhatsApp message of Google link and you can do this miracle. The moment you get, थोड़ा याद रखिए, ये सिंगर है बर, इसको पागल करके जरूरत नहीं है कि इसने फुल ऑन फुल मैकेनिकल में लाना है. He will pass. He will do graduation, no issue. So identify इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पैशन, ये वो थोड़ा थोड़ा लिख के रखिए. थोड़ा मेहनत है टीचर को, लेकिन टीचर ने अगर ये ट्रीटमेंट चालू कर दिया, एंड मॉरल्स एंड इथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट. और दूसरे दो टीचर, देखो आप सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के होना चाहिए, आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना चाहिए. जो भी मैं कर रहा हूं, करा रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या उसका इफेक्ट मॉरली इथिकली स्टेबल रहने वाला है, क्या वो ग्रीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और क्या वो डेटा मैनेजमेंट और डेटा सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है. ये तीन चीज गोल्ड माइन है अभी आज की तारीख में, डेटा मैनेजमेंट और डेटा सिक्योरिटी. मैंने 3 साल से साइबर सिक्योरिटी के 6 कोर्स कर डाले. साइबर सिक्योरिटी इज व्हाट? डेटा सिक्योरिटी. मोबाइल 24 घंटे यूज कर रहा है. सो टीचर के दिमाग में, बैक ऑफ माइंड, ये तीन चीजें होना चाहिए. आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाइए, कि मेरे पढ़ाते वक्त क्या मैं ये संस्कार कर रहा हूँ कि डेटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, इट हैज टू बी ग्रीन सपोर्टिंग, इट्स ग्रीन 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 ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं. और तीसरा, उसके चॉइस का, मैं पैशन का करके दे रहा हूँ कि नहीं. ये 2-4 चीजें टीचर ने अपने बैक ऑफ माइंड रखो. अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाओ, आप जिसमें एमटेक पीएचडी किए वही पढ़ाओ यार, लेकिन बी अ गुड गाय इनटू बी अ मेंटोर, मोर मेंटोर. इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है. यूडेमी में 300 रुपए में इतने बढ़िया कोर्सेस मिल रहे हैं डिस्काउंट में, और 150 रुपए मिल जाते हैं. 70% डिस्काउंट चालू यूडेमी में, कोर्सेरा में. ये सब नहीं करना. टीचर बहुत अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, नॉलेज इज अवेलेबल, मेंटोरिंग इज मिसिंग. सो सी टू इट दैट वी विल कॉन्सेंट्रेट, एवरी टीचर एट अ बैक ऑफ माइंड, कि क्या मैंने, मेरे साथ इसने 50 घंटे निकाले हैं, इस पे ऐसे क्या मैंने, यू आर अ कंटिन्यूअस ट्रांसमीटर, राइट? if you are not aware about that what you are transforming, what you are transmitting, अगर वो ध्यान रखे, बस एक बार आदत पड़ जाती है कि देखो मेरी बात करने का ढंग, माई स्टाइल, माई वोकैब, माई एटीट्यूड, माई ड्रेसिंग, माई एक्सप्रेशन, माई पैशन, इज इट रिफ्लेक्टिंग द राइट वे ऑन द स्टूडेंट्स और नॉट. टीचर इफ बैक ऑफ माइंड इतना भी रखे ना कि मेरा बोलना, करना, रहना, मेरे विचारधारा, मेरी इच्छा शक्तियां, मेरी सोच, ये सब मेरे सपने जो मैं इनको दिखा रहा हूं, ये सब क्या इन सिंक है इनकी ग्रोथ के लिए, तो बस ये काफी है. सो टीचर को सब्जेक्ट तो सब एमटेक है यार, सब बिना पोस्ट ग्रेजुएट तो कोई टीचर थोड़ी बनता. तो ठीक है, बन जाओ, बट वो बेसिक नहीं है तुम्हारा, वो दाल चावल है. और बच्चों को दाल चावल खिला खिला के नहीं, उनको चाहिए मॉकटेल्स एंड स्टार्टर्स एंड डेजर्ट्स. और वो सिलेबस में नहीं आता. डेजर्ट्स और मॉकटेल्स, और अगर आपको स्टार्टर्स करने हैं तो आपको एड ऑन मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन फिर जिए तो क्या है जिए, इफ यू आर नॉट people don't feel that grace in you, that aura in you, that love for you, that regards for you, तो फिर किस बात के टीचर. So that you have to keep in back of mind. तो टीचर ने ऐसा ही रहना चाहिए. और स्टूडेंट के लिए एक दो बोल रहा हूँ कि डरना नहीं. प्लीज बी बोल्ड टू टेल योर चॉइसेस. प्लीज बी बोल्ड टू योर टीचर्स, टू योर पेरेंट्स. बिंदास बताओ यार. अभी तो पेरेंट्स कोई मार थोड़ी रहे, अभी जमाना गया है. पेरेंट्स गेट सेंसिटिव. माँ बाप ही रो देते. हमारे पास कितनी मम्मियाँ आती, पेरेंट्स आते, टीयर्स में आ जाती, नहीं यार बच्चे कैसे, अरे तू क्यों रो रहे भाई, लेट योर स्टूडेंट इज एडल्ट, 18-19 साल का हो गया ना, आप क्यों रो रहे हो. उसको जो बोलता है वो करो, फिलहाल ट्राई दो. सो स्टूडेंट, please remember, you should respect teachers and parents. They are more experienced, they are more learned, they are more concerned. तुम्हारे लिए जितने कंसर्न है ना, उससे ज्यादा ये लोग तुम्हारे कंसर्न है, क्योंकि उनके लिए उनका बच्चा कोई बड़ा बन जाए, ये उनके लाइफ का बिगेस्ट गोल है. टीचर के लिए उसका रिजल्ट 100% आ जाए, ये तुमसे ज्यादा उसका बड़ा गोल है. तो ये दोनों को कंटिन्यूस रिस्पेक्ट के साथ
सफिशिएंटली बोल्ड रह के अपने चॉइसेस और प्रेफरेंस बताने की हिम्मत रखना, स्टूडेंट विल बी सक्सेसफुल. डू नॉट गेट अवे फ्रॉम हॉबीज. नहीं है तो एक चालू करो आज ही. बट हॉबीज, हॉबीज बूस्ट लाइक एनीथिंग. कभी आप डिप्रेशन में जाते ही नहीं. कभी आप वो सब अपने निगेटिव वाला अपने इसमें आने नहीं देना है. हॉबी कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो दैट इज द मैसेज. So one other important question that I would like to ask. राइट राइट. When we talk about the present generation and the previous one, there is a generation gap, and the issue of ethics has become like a very big major challenge because you Yes. continuously talked about you're trying to instill values and ethics. Please talk to us a little bit about the importance of that even in the present times. आई ऑलवेज टेल दैट अगर लाइफ में गोल सेट करना है ना अपने को, तो एक चीज में नहीं करना है. किसी को मैं पूछता हूँ गोल करियर नहीं. अगर so I always tell, if are you serious about your goal setting thing, I take goal setting workshops 3 days for industry people, for teachers and all that. मैं बोलता हूँ यार गोल सेट करना है, एक साथ 5 चीजों में करो या तो मत करो. क्योंकि आपका एक या दो गोल सफल हो जाए तो आप बुरी तरह, यू नेवर नो. सो आई ऑलवेज टेल दैट करियर गोल यस, एजुकेशन गोल यस, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट. मतलब गोल मतलब वही लगता है लोगों को. देन हेल्थ गोल, वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ गोल्स लाइक मैं उम्र के 75 साल में टेबल टेनिस खेलूंगा कि नहीं, लॉन टेनिस खेल पाऊंगा कि नहीं, 8 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे को उम्र के 25 साल में नहीं समझ में आ रहा है. तो 85 में मैं करने ही नहीं वाला हूँ, मैं जीऊंगा भी नहीं उतना. सो हेल्थ गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आज ही प्लान करो अगले 20-50 साल का. नेक्स्ट, मॉरल्स एंड एथिक्स के गोल्स, कि इसके नीचे नहीं जाऊंगा. एंड देन आई टेल मेनी एग्जांपल्स टू देम. लाइक आई नो वन ऑफ माय नोन पर्सन, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड बोलता था, मैं अभी फ्रेंड नहीं बोलता हूँ थोड़ा डर के मारे, क्योंकि आई नो हिम. क्यों? क्योंकि ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, वेरी हैंडसम गाय. ही वॉज वेरी रिच, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, नागपुर की बात बता रहा हूँ. ही वॉज हिमसेल्फ मॉडल फॉर हिज ओन प्रोडक्ट्स. उसका 5-7 फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री. तो देखो, एक्सेलेंट हेल्थ था, एक्सेलेंट फैमिली था. एनिवर्सरीज, बर्थडे के बर्थडे सब स्विट्जरलैंड में हो रहे, दुबई में हो रहे, वो सब लेवल का था. सारे पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे थे, इतना रईसी थी, सबका था. सो हेल्थ, बहुत बॉडी बिल्डिंग, रोज जिम के बिना ऑफिस नहीं जाता था. सो हेल्थ, मॉनिटरी गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, करियर गोल्स. यस, ही डिड एमएस एंड एमटेक एंड एमबीए फ्रॉम लंदन एंड ऑल, सब था. एक दिन पेपर में फ्रंट पेज आ गया, 3,000 crores एंड बिहाइंड द बार्स टिल डेट फॉर लास्ट 10 years. तो क्या हो गया था, 5 गोल बड़ी ताकत से चल रहे थे. हेल्थ बना रहा है, करियर बना रहा है, एजुकेशन बना रहा है, फैमिली प्लान अच्छा हो रहा है, फैमिली ग्रोथ हो रही है, करियर ग्रोथ हो रही है. इस 5 के चक्कर में एक भूल गया था, मॉरल्स एंड इथिक्स के गोल्स. ये नहीं समझ रहा था कि यार इसके आगे नहीं करूंगा, ये मेरी लास्ट लेवल है मेरे इथिक्स की. किसी ने बोल दिया पैसा खा, नहीं नुकसान कर दूंगा, लेकिन इसके आगे मैं आई विल नॉट ब्राइब, आई विल नॉट लेट डाउन माई मॉरल्स एंड मोरल्स. मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा. इसकी अगर मॉरल्स और इथिक्स की अगर लेवल सेट नहीं है ना, तब तो हम देख रहे कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मेनी स्टेट्स आर बिहाइंड द बार्स. उनको क्या कमी थी, क्या कम था? बस एक ही चीज कम थी, मॉरल्स एंड इथिक्स. और ये बचे पांचों ना, उसको नहीं बचा पाए. उसका भी फोटो आया था पेपर में, हेल्थ ऐसी हो गई है, पेट बाहर निकल गया है, वजन 50 किलो का हो गया. मतलब उसकी हेल्थ खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, बैंक अकाउंट सील हो गए, फैमिली छोड़ के भाग गई, उनके नाम पे वारंट निकल के बेचारे के. अब क्या हो गया था, ये पांचों नहीं थे, और क्या गड़बड़ थी, छठवां जो गोल था, लिमिट्स टू मॉरल्स एंड एथिक्स, ये बिल्कुल लिख के होना चाहिए. एक रिफिल नहीं यूज करूंगा बैंक को. आई कैन बेट ऑन माई कॉलेज, मेरे 40-35 साल मेरे फादर ने नौकरी की थी बैंक में. ही सेड, विवेक एक रिफिल भी नहीं लेना, और जिस आपको सैलरी मिल रही जहां से, वहां की आप एक रिफिल भी नहीं लेना. रिफिल बोलते थे उस जमाने में, तो पेन यूज करके रिफिल डालते थे मेरे फादर. तो बोलते थे रिफिल लेने के लिए मैं दुकान बाहर जाता था, पर बैंक में रेड पेन ब्लू पेन मिलते थे और वो रिफिल मिलती थी, मैं नहीं कभी कभी खरीदा. तो वो संस्कार करना इनडायरेक्टली बहुत जरूरी है. अगर हमने एक पैसे का भी, मतलब जो हम खरीद सकते वो हम किसी की लेंगे नहीं. मेरे को किसी ने ऑफर कर दिया, मैं ऑफिस में, तो आई एम अ डायरेक्टर ऑफ सच अ बिग संस्था, तो मेरे को क्या नहीं है वहां पे, पर मैं आई डोंट डू टेक, आई टेक, मैं एक कागज नहीं लेता उनका. मेरा है ना यार, मेरे को सैलरी दे रहे हैं ना इतनी अच्छी, तो इसके अगेंस्ट मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ करूं. आई हैव अ बिग, आप कभी आइए मेरे ऑफिस है, एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू माय वीडियो कैन कम डाउन टू माय ऑफिस एंड यू विल फाइंड अ बिग कप ऑफ पेन्स, कलर्ड पेन्स एंड बिग कप ऑफ चॉकलेट्स. मेरे यहाँ कोई भी आए,
मैं उनको पहले चॉकलेट और एक कलर पेन देता हूँ, बिठाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, फिर बात होती है। तो इतना तो मिनिमम देने की प्रवृत्ति रखो तो मॉरल इथिक्स अपने आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड राइट इट डाउन। मैं ये नहीं करूंगा, कितना भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इतना ब्राइब नहीं, 1 रुपया ब्राइब नहीं लूंगा, फिर क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर ये नहीं होगा, वो होगा देखा जाएगा। इफ नो बडी इज वॉचिंग मी सो आई विल नो नेवर। ये वाला जो संस्कार है ये स्टोरीज के थ्रू आता है, मतलब कि ये इलस्ट्रेशन, ये एग्जाम्पल्स, ये लाइव एग्जाम्पल्स ही आता है। आज से कुछ मत करो, वो तो हमारा गोल सेटिंग का पहला फंडा है, प्लीज डोंट स्मोक, ही विल स्मोक, क्योंकि स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव। तो क्या करना है ये बच्चों को बहुत अच्छी से बताइए, तो फिर न करने वाली चीजें बताने की जरूरत नहीं है। Yes. सो दैट इज द वे। Thank you so much for being on Ek Samvad at Arunima Ankuran, sir. I personally feel indebted to a teacher like you because you're changing lives, you're sowing seeds of positive change in the society and inspiring so many people. Thank you so much for doing this. You're a थैंक nation यू, builder, and we are so grateful to you for your time. Thank you for being on Ek Samvad, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. And my best wishes to all those viewers who are watching, all the teachers and students, my best wishes and regards to all of them. Thank you so much. And blessings to my dear students. Thank you, Thank sir. you. Thank you.